Yeah, we are live. I still can't see. Okay. Hello, viewers. Welcome to another session by Anna Jory. We host such sessions every week, every day of the week, on various issues like gender equality, animal welfare, elderly care, entrepreneurship. And today's session, just like every Friday, is on animal welfare. And we have with us two very special guests, Rohan and Antara from UCI Foundation. Uh, we'll like to first know about how you started UCI Foundation. Rohan, over to you. Right. Thank you for the opportunity, Abhishek. So we started our UCI Foundation. Basically, initially it was just through the YouTube videos, making social experimentals videos, and showing the real face of the society. It was 3 days back in March 2017, which where we started making videos for the society. But later we realized that just making videos will not change the face of society. We need to be on the ground and help the people who are in need, and also to help not only the people but the animals too. So we thought of just we'll stop making the videos and we'll start working in the ground. And initially we also started getting calls from the people who expected us ki we'll be working in the ground sector and we'll be helping them in their various needs, whether it may be some major You accidents. say that we used to make videos and we started uh, working on the ground. Whom do you refer to? We. So we includes our 5 friends, my Mhm. younger brother, who thought of making videos because it was one of the incident which was happening in the roadside, like a police person was torturing a person, a poor person. So we thought of going and helping out the person. So when we Where was this? went, it was in Tezpur, Assam itself. It was near Okay. the street side. So we thought we saw it happening from past 10 minutes. So we thought that कोई public to जा नहीं रहे, let's go and let's try to figure out what's the matter and how can we resolve it, because Mhm. the fight was turning a bit uglier by Mhm. abusive words and everything. So we thought of going and helping the person. So we got support of 15-20 people of the locality who supported our work there, how we engaged ourselves with the police personnel and helped the poor person at that point of time. So uske baad we started making the videos showing the real face of the society. And Mhm. post that we started getting calls at midnight too. Like the first case which I remember was at 1 p.m. 1 a.m. sorry, at midnight, where we got a call regarding the rescue of a cow which was badly hit by a vehicle in near the Mhm. petrol pump. So we got a call at around 1 a.m. in the night. So हमारे पास तब कोई साधन नहीं था. We didn't have any resources to go and help out the poor cow. So what we did was we called 108, the Mrityunjay ambulance, which is used for the normal human. So we called up at 1 a.m. at midnight. So उसके बाद क्या हुआ, हमने तो नॉर्मल उस टाइम वेटरनरी भी बंद हो गया था, तो हम उसको सिविल लेके गए, सिविल हॉस्पिटल विच इज इन तेजपुर अगेन. सो वहाँ हम लेके गए. द डॉक्टर आर नॉट सो कोऑर्डिनेटिंग विथ अस कि हम तो इंसानों का डॉक्टर हैं, तो हम जानवरों का कैसे देख रेख कर सकते हैं. सो व्हाट वी डिड, हमने उसका मरहम पट्टी करवाया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट एड दिया बेसिकली. उसके बाद हम उसको अगले दिन गौशाला में शिफ्ट किए, so that basic Mhm. attention and care can be given for some point of time. So post that Mhm. an FIR, unfortunately an FIR was lodged against us कि हमने एक Why? human ambulance को we tried Okay. helping an animal by Mhm. lying the ambulance person कि यहाँ पे एक इंसान है. So Mhm. FIR was lodged against us. So Who lodged this within a day or FIR? two, even we Was are this not aware, Womotu? till date. I think hopefully I can't say, but maybe the police were present there, or maybe the doctors were involved in the Okay. action at around 1 a.m. So I think Mhm. they have done that. So FIR lodged हुआ हमारे against. फिर it went on till 2 or 3 days. Then again it was closed because the police official called us in the police station. They spoke to us at length कि हमारा initiative था. We just
quoted that we are not someone who think ourselves to be a शक्तिमान और सुपरमैन जिसको हम जाके हेल्प कर सकें, बट उनको भी लगा कि यार इन बंदों का नियत सही है. हमारा एक नियत था बस कि एक काउ को हम हेल्प कर सके, सो दे क्लोज द हेल्प करना है, राइट. सो उसके बाद हम वो एफआईआर बाद में खारिज किया उन लोगों ने. हाँ, एफआईआर बाद में फिर कैंसिल हो गया, खारिज हो गया. Okay, okay. And what about the animal? The animal was rescued and the proper treatment was given for a week and 10 days in Gaushala, which is located in Tezpur. So वहाँ पे 10 दिन उसको रखा गया. उसके बाद जब वो फिट हो गई, उसके बाद फिर छोड़ा गया उसके मालिक के पास. So that's how you started UCI Foundation. Yes. The current state, like the current operations of UCI Foundation. Yes, which happens in Assam. Hello, can you hear me? Okay. Yes, I can hear you, Abhishek. Okay. Okay. So how did you spread across like all these places? Kolkata, Agra. How did you spread across these places? So basically, as we know that souls of same connection can get connected anywhere at any point of time. So this was the same thing which happened. People who had the same intention of helping the society, so they thought of joining us, they thought of connecting with us, and Ranchi branch is taken care by one of our dearest friend, who is Rohit Rajput, who have there are plenty other initiatives which he takes care in Ranchi too, like Hope for Homeless, where he provides accommodation, fooding, and shelter. He tries to manage shelter for the poor people too. He also takes care of the boys initiative and the Anant Vidya in Ranchi itself. And in Kolkata, we have Damayantar Didi, who is a model by profession. And we have Siddhant Tiwari, who is a poet, an anchor, and a dancer too, and a very good singer these days. So he takes care of the Anant Vidya initiative. And the Rekkajuli branch is taken care by Antara Chandra and Gojan. And the Tezpur is taken care by our lovely people, all the members. Okay. Antara, how did you come to join UCI Foundation? What was your motivation and when did you join it? मैंने करीबन 8 महीने पहले यहाँ पे ज्वाइन किया. एक्चुअली तेजपुर में मेरा एक फ्रेंड है राज चाहनी बोल के, तो वहाँ पे पहले रिवॉइस मतलब लीड करता था, अभी भी मतलब वो काम करता है वहाँ पे. तो उसने मुझे मेरे साथ बात किया उसने कि तुमको करना है या नहीं. तो मुझे पहले से ही बहुत मतलब एनिमल्स के लिए कुछ करना था, मतलब मन था कि कुछ कर पाऊँ उन लोगों के लिए. तो तब उसने जब बात किया देन मैं बोला ठीक है चलो ट्राई करके देखते हैं, क्यों कितना हो पाता है वो तो बात का बात है ना. तो फिर हम लोगों ने वैसे ही 8 महीने पहले स्टार्ट किया. यहाँ पे हम लोगों ने स्टार्ट किया, 5 जन थे हम लोग पहले मेंबर. अभी हम लोग का यहाँ पे 13 मेंबर है. कहाँ पर? ढेकियाजुली. ढेकियाजुली में. ओके. सो ये जो मेंबर्स हैं सारे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या आपके जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं? हाँ, मैक्सिमम कॉलेज स्टूडेंट्स ही है एंड 1-2 जन है जो जॉब करता है. ओके. सो हाउ हैज बीन द एक्सपीरियंस? तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब उन लोगों को हेल्प करने का मौका मिला है. सब लोग अभी यहाँ पे ऐसा हो गया है कि लोग मतलब खुद से भी चल के आते हैं कि आप लोगों को हेल्प चाहिए तो हम लोग हैं. तो ये हेल्प आप कैसे प्रकार के हेल्प करते हैं? लाइक व्हाट काइंड ऑफ हेल्प डू यू? हम लोग का 3 काम होता है, फीडिंग, रेस्क्यू एंड अडॉप्शन का. तो हम लोग एवरी वीक फीडिंग करवाते हैं. फिर जब मतलब लॉकडाउन का टाइम था उस टाइम पे हम लोगों ने रेगुलर भी फीडिंग करवाया. तो एक फीडिंग हो गया. फिर रेस्क्यू के टाइम में फीडिंग जो आपने कहा कि एवरी वीक करवाते हैं, तो लाइक एवरी वीक एक 2 दिन करवाते हैं या थ्रू आउट द वीक चलता रहता है ये प्रोग्राम? नहीं, वीकली वंस. ओके. बाकी हम लोग मतलब रेस्क्यू के लिए जाते हैं. अगर कोई डॉग या फिर काऊ किसी का भी कुछ एक्सीडेंट हो गया या फिर उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उन लोगों को मतलब वेटरनरी लेके जाना, उन लोगों का ट्रीटमेंट करवाना, वो सब करता है. एंड बाकी मतलब एडॉप्शन के लिए हम लोग अपील करते हैं, एडॉप्शन करवाते हैं उन लोगों का. ऑलमोस्ट हम लोगों ने अभी तक रेस्क्यू केस 120 रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट हम लोगों ने 126 केसेस किया है रेस्क्यू एंड ट्रीटमेंट का. उसमें डॉग्स, कैट्स, काउ सब कुछ इन्वॉल्व है. स्नेक भी हम लोगों ने रेस्क्यू किया है 4-5. बाकी एडॉप्शन भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 230
तक एडॉप्शन करवाया है डॉग्स का, डॉग्स एंड कैट्स भी। तो आपने जो ये कहा कि स्नेक्स भी रेस्क्यू करवाते हैं, तो हाँ स्नेक्स रेस्क्यू करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड हाँ स्किल्स की जरूरत वो पड़ती है, एक्चुअली हर्पेटोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो आपके हाँ टीम में ऐसे कोई है जो हर्पेटोलॉजिस्ट या फिर हर्पेटोलॉजी से वास्ता रखते हो? एक्चुअली ढेकियाजुली में अभी तक स्नेक का रेस्क्यू नहीं हुआ। यहाँ पे काउ ओके कैट्स एंड डॉग्स का रेस्क्यू हुआ है एंड स्नेक का रेस्क्यू ओके हुआ है तेजपुर में। तो वहाँ पे ओके एक जन है तो वो हेल्प करते हैं। ओके ओके। और आपके यहाँ पे जो ढेकियाजुली में जितने काउस, कैट्स या डॉग्स की रेस्क्यूज होती है, तो ये एनिमल्स को किस स्टेट में पाया जाता है? लाइक एक्सीडेंट रेस्क्यूज या फिर व्हाट काइंड ऑफ रेस्क्यूज डू यू डू यूजुअली? बेसिकली हम लोग का एक्सीडेंट रेस्क्यू ही होता है। तो पहले हम लोग इतना कोई जानते नहीं थे कि हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो उस टाइम में ऐसा होता था कि शायद मतलब एकदम लास्ट स्टेज में हम लोग को पता चला। तो अभी ऐसा हो गया कि अगर कोई मतलब केस होता है तो ऑलमोस्ट मतलब 2-3 घंटे के अंदर हम लोगों के पास खबर आ जाता है। तो उस टाइम में हम लोग ओके मतलब जितना जल्दी पॉसिबल हो हम लोग जाते हैं वहाँ पे। ओके। और आप ये जरा बताएंगे कि ये प्रोसीजर पूरा कैसे करते हैं आप लोग रेस्क्यू? लाइक आप लोग हाँ जब जाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? लाइक आपने कहा कि आपके यहाँ पे 13-15 जन मेंबर हैं अभी, हाँ हाँ। राइट? हाँ। सो ये 13-15 जन मेंबर्स में कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है, और कैसे रेस्क्यू होता है, ये पूरा प्रोसेस जरा बताएंगे? एक्चुअली हम लोगों को जब एक फ़ोन आता है पहले या फिर कोई हम्म जैसे भी हम लोग को इन्फॉर्म करे तो पहले हम लोग का एक ग्रुप है तो पहले वहाँ पे बात होता है, वहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप किया जाता है कि ऐसा रेस्क्यू का हम्म केस है। एंड ढेकियाजुली टीम में 2-3 जन बाहर से भी है जो ढेकियाजुली में नहीं रहते। एक जन हम्म शिंगरी का है और एक जन रैक्कशमारी का है। तो वो लोग हम्म हमेशा आ नहीं पाते। तो यहाँ पे हम्म बेसिकली मतलब जो अवेलेबल होता है तो ग्रुप में मैसेज करने के बाद इतना टाइम नहीं होता कि सबके रिप्लाई का वेट कर सके। तो उस टाइम में फ़ोन में बात कर राइट। लेते हैं तो जो भी मतलब फ्री हो तो उसी टाइम चला जाता है। एंड हम लोग मतलब ये मेक श्योर करते हैं कि कोई मतलब उस स्पॉट में हो। और फिर वहाँ पे जो मेडिकल एड प्रोवाइड किया हाँ। जाता है, तो वो किस तरह से होता है? अ, अभी हम लोगों का पहले तो हम लोग वेटरनरी में लेके जाते थे। अभी अगर हम्म काऊ का सपोज़ एक्सीडेंट हो गया है, फिर मैक्सिमम काऊ का हम लोगों को एक्सीडेंट केस ही मिलता है। तो काऊ का हम्म एक्सीडेंट हो गया तो हम लोगों का मतलब अभी डॉक्टर से अच्छा एक रिलेशन हो गया है। यहाँ पे ढेकियाजुली हम्म में जो सब वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, तो हम लोग वहाँ हम्म से फ़ोटोज़, वीडियोज़ लेके डॉक्टर्स को सेंड करते हैं। अगर ज़्यादा बहुत इमरजेंसी हो गया तो वो लोग आते हैं वहाँ पे स्पॉट में, जो भी प्रेज़ेंट रहते हैं। हम्म अगर वहाँ पे भी वहाँ पे प्रिलिमिनरी जो सब ट्रीटमेंट्स होता है वो सब होता है। एंड अगर हम्म वहाँ पे भी मतलब कुछ ठीक ना हो देन हम लोग उसको वेटरनरी में लेके जाते हैं। ये बेसिकली ये होता है काउस के लिए, क्योंकि स्पॉट ओके। से वेटरनरी तक लाने में ये बहुत जब ज़्यादा ले लेट हो जाते जाता हैं है। आप हाँ, लोग जब ले जाते हैं, तो इसके लिए जो व्हीकल की जरूरत जरूर पड़ती होगी, तो ये हाँ, व्हीकल कौन हाँ। प्रोवाइड करता है? वो हम लोग ही अरेंज करते हैं। अ, अगर मतलब छोटा काऊ या फिर कुछ हो तो हम लोग टोटो या फिर ऑटो में लेके आते हैं, नहीं तो हम लोग गाड़ी का देखते हैं। हम लोग ही अरेंज करते हैं। बाकी ओके डॉग्स ओके। वगैरह का ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। इसमें हाँ। मतलब प्रॉब्लम नहीं होता कुछ, लाइक व्हीकल अरेंज लेके करने आने में? में शायद कभी कभी, लाइक हाँ, काउस, वो होता स्पेशली है। डॉग्स एंड कैट्स, आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो हाँ। हो जाता है। तो ये काउस जब रेस्क्यू करने जाते हैं तब तो प्रॉब्लम जरूर होती होगी। तो उस हाँ, बहुत प्रॉब्लम को आप प्रॉब्लम लोग होता है। कैसे डील करते हैं? उस प्रॉब्लम से कैसे डील करते हैं? अभी तो हम लोग मतलब जान-पहचान के लोगों से ही बात करें। अभी तक इतना मतलब एक्सट्रीम लेवल का प्रॉब्लम अभी तक फेस नहीं किया हम लोगों ने। तो हम्म मतलब जितना हो सके अरेंज हो जाता है, अभी तक अरेंज हो गया है। बाकी हम्म मतलब रिसेंटली हम लोगों ने एक केस किया, तो वहाँ पे रात के 10 बज रहे थे, तो वहाँ पे गाड़ी वगैरह नहीं मिल रहा था। तो उस टाइम में हम हम्म लोगों ने मतलब बहुत लोगों को फ़ोन किया, फिर मतलब पब्लिक भी हेल्प करते हैं, तो वैसे करके अरेंज ओके हो जाता है। ओके। एंड रोहन, आपने कोई ऐसा मतलब डिफरेंस या सिमिलैरिटीज देखी है इन द आउटलुक ऑफ द पीपल इन आगरा एंड इन द नॉर्थ ईस्ट, तेजपुर, ढेकियाजुली, जो इन सब जगहों में जो यहाँ का जो आउटलुक होता है, पब्लिक आउटलुक, वहाँ पे तो आगरा से कैसे डिफर करता है, या फिर व्हाट आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज प्लेसेस? वेल इस मामले में it's not doesn't depend on the locality, but however I would also like to mention something कि कभी कहीं लोग सही भी मिलते हैं और कहीं भी कोई लोग गलत भी मिलते हैं, जो स्पॉट पे रहते हैं बट फिर भी कुछ नहीं करना चाहते हैं।
जानवर तो छोड़िए, आदमी इंसान की मदद नहीं करता है यहाँ। हम अपने इस लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि हम अपने दूसरे तरफ देखते भी नहीं कि कौन घायल हो रखा है या किसको हेल्प चाहिए। तो ये एक देखा है मैंने। और इसी के साथ मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि अगर आप एनिमल लवर हैं तो आप हमेशा उसको पैम्पर करें जानवर को। अगर कोई हेल्प, किसको हेल्प चाहिए भी होता है, तो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट जस्ट एज एन एनिमल लवर बट एज ए ह्यूमन, कि हम उसको आगे रेस करें। अगर किसी को मदद चाहिए तो वी शुड कॉल अप द राइट पर्सन और द राइट चैनल हु कैन कम फॉरवर्ड एंड लुक फॉर द और प्रोवाइड द हेल्प टू द एनिमल्स। और रही बात आपकी इस क्वेश्चन की कि आगरा में या नॉर्थ ईस्ट में कैसे चेंज होती है सिनारियो लोगों को लेके, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पीपल वेयर आई फाइंड पीपल इन एवरी प्लेस द सेम। कुछ लोग होते हैं, एक सेट होता है जो हेल्प करना चाहता है और एक सेट होता है जो नहीं हेल्प करना चाहता है। तो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट द सेम। आप कहीं भी जाएंगे आप दो सेट के लोगों को पाएंगे। एक होता है जो मतलब उस समय के साथ साथ अपना रिसोर्सेज भी हेल्प करता है, रिसोर्सेज से भी हेल्प करता है, लाइक प्रोवाइडिंग बाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने ये भी देखा है, एक तेजपुर का मैं इंसिडेंट कोट करना चाहूंगा, एक गाय को लेके ही था कि वो बंदा ही वाज बेसिकली ऑटो वाला। तो ऑटो वाला था, तो हमारे पास एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास खुद का कोई एम्बुलेंस है नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हम या तो अपने मेंबर्स का स्कूटी बाइक या कभी 4 व्हीलर्स ले आते हैं जब भी कोई बड़ा इशू होता है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास कुछ नहीं था अपार्ट फ्रॉम स्कूटी एंड बाइक। तो ये ऑटो वाला जस्ट पासिंग बाय थ्रू द स्ट्रीट, सो उसने ऑटो अपना रुकाया और बोला कि भैया आप एक काम करिए, मैं आधा घंटा 45 मिनट रुका हूँ आपके साथ, जब भी आपको इस फर्स्ट एड देने के बाद इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता है आप मेरे को बताइए, हम साथ जाएंगे, हम आपके साथ हैं। सो आई सॉ वन ऑफ द पर्सन, मुझे बहुत अच्छा लगा कि समवन कमिंग आउट फ्रॉम द पब्लिक। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अमीर हो तो ही आप किसी का हेल्प कर पाओगे, नहीं। अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आप गरीब भी हो, अगर आपका दिल बड़ा है तो आप अगर आप इंटेंशन रखते हो किसी का हेल्प करने के लिए, तो वही बहुत बड़ी बात है। तो उस दिन मेरे को एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल लगा कि यार वो गरीब बंदा बट स्टिल ही अपना पेट्रोल या डीजल बर्न आउट करके हॉस्पिटल जाना चाहता है, विच इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्पॉट। तो वो बात मेरे को एक अच्छा लगा। और जहां तक हम देखते हैं कि एक कुत्ता भी या एक बिल्ली को भी चोट लग जाता है, तो मैं देखता हूँ कि काफी टाइम ऐसा होता है कि लोग अपना अपने काम में व्यस्त रहते हैं और आते नहीं। दे डोंट इवन थिंक ऑफ लुकिंग एट दैट प्लेस, दैट स्पॉट जहाँ कुछ इंसिडेंट होता है। तो दो सेट के लोग आपको हर जगह मिलेंगे, चाहे वो आगरा हो, रांची हो या अमेरिका ही क्यों ना हो। नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि आगरा इज यूजुअली नोन एज द काउ बेल्ट ऑफ इंडिया एंड इट फॉल्स अंडर द काउ बेल्ट ऑफ इंडिया। सो वहाँ पे कैटल लॉज जो है या फिर जो कैटल वेलफेयर जो है वो किसी तरह से वो ज्यादा दिखता है वहाँ पे, यहाँ से ज्यादा दिखता है या किसी तरह से कम दिखता है? व्हाट इज द सिनेरियो देयर? कभी कभी हमें ये भी पता चलता है कि ऑफन गाय तस्करी की वजह से या फिर संदिग्ध गाय तस्करी की वजह से ऐसा होता है कि लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है। बहुत केसेस आए हैं मीडिया में, लेकिन वो इधर नहीं है। लाइक नॉर्थ ईस्ट में ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है, हालांकि ईस्टर्न इंडिया में भी गाय की तस्करी बहुत होती है। लाइक क्रेन से गाय को बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचाया जाता है। इनफैक्ट बंगाल से तो वो व्हाट डू यू कॉल दैट, बनाना ट्री से बांधकर उनको बहा दिया जाता है एंड इट्स द कैटल आर पिक्ड अप ऑन द अदर साइड ऑफ द बॉर्डर। सो गाय की तस्करी इधर भी होती है और उधर भी होती है, लेकिन ऐसे केसेस हमें वहां देखने को मिलती है। तो is cattle welfare given a priority in North India? Well, I don't find any much difference here because जहाँ तक मैंने ये पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है मेरा कि आज तक मैंने ऐसा कुछ मतलब आगरा में मैंने ऐसा देखा नहीं है जो तस्करी हो गया या स्मगलिंग हो गया ऑफ कैटल। So I won't be the person to comment something which I have not experienced myself. Okay. Yeah, but and last हाँ जी बताइए। लास्ट वीक मैंने असम का ही बात है ये, हमारे एक डिस्ट्रिक्ट का जहाँ 13 गाय को पकड़ा गया था
as a part of cattle smuggling. तो ये असम में जब मैं रहता हूँ तो ये न्यूज़ मेरे को ज़्यादा मिलती है, बट जी यहाँ जी अभी कुछ दिन पहले ये आया था, हाँ राइट, न्यूज़ में भी आया था, राइट। तो ये इंसिडेंट मेरे को असम में या नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा ज़्यादा देखने में मिलता है, यहाँ पे हालांकि कम है ऐसा, बट यहाँ पे ये ऐसा है कि यहाँ कोई ऐसा संस्था नहीं है आगरा में जो मैंने 5 साल से देखा है जो एनिमल वेलफेयर के मामले में सोचता है। तो इसलिए मैं कुछ मतलब वॉलंटियर्स इकट्ठा कर रहा हूँ जो मैं आगे जानवरों के बारे में या एनिमल वेलफेयर के बारे में आगे देख सकूँ यहाँ पे। Okay. Antara, what is the state of cattle welfare in the Northeast? एक्चुअली अभी जो सब लोग मतलब लोग काम कर रहे हैं एनिमल वेलफेयर में, तो पहले स्टार्टिंग में डॉग्स को लेके ज्यादा काम होता था, अभी काउस को लेके भी मतलब काम स्टार्ट हो रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा चल रहा है। लाइक आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस फेस करना हुआ हो जहाँ पे आप रेस्क्यू करने गए हो या फिर आपने देखा हो कहीं पे कि कोई गाय सफर कर रही है और उसको बचाने में कोई चैलेंज रेसिडेंट्स से, लोकल्स से, या फिर खिलाने में चैलेंज, फीडिंग में चैलेंज हुआ हो, स्ट्रे एनिमल्स को लोकल से चैलेंज मिला हो या फिर पुलिस से चैलेंज मिला हो? जैसे कि अभी रोहन ने बताया कि कुछ जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उनको ये चैलेंज फेस करना पड़ा था कि पुलिस एक FIR हो गया था, which was quite needless, right? His intention was correct, फिर भी एक harassment हुआ था. So have you ever faced any such incident, any such harassment? No, fortunately actually हम लोग मतलब यहाँ पे जब से काम कर रहे हैं हम लोग को स्टार्टिंग से बहुत पॉजिटिव वाइब मिला है। सब लोग बहुत ज्यादा हेल्पफुल है हम लोग को। मतलब हम लोगों ने जब फर्स्ट काउ रेस्क्यू किया था ना, तो उस टाइम में पुलिस भी थे वहाँ पे, तो हम लोग को थोड़ा लेटली खबर मिला था, तो वहाँ पे पुलिस भी थे, तो उन लोगों ने हम लोग को ज्यादा हेल्प किया, गाड़ी अरेंज करके देना, वेटरनरी तक जाना। तो अभी तक यहाँ पे मतलब सब लोग बहुत हेल्पफुल है। जितना हम लोगों ने काम किया है ये सब फेस नहीं किया अभी तक। और कभी भी रेस्क्यू होता है तो आसपास जितने भी लोग होते हैं तो मैक्सिमम लोग हेल्प करने के लिए आते हैं। And often this has been seen, मैंने जितने मतलब से बात की है इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ऐसा हुआ है कि बहुत से लोगों को ये परेशानी झेलनी पड़ी है कि वो लोग जब भी फीड करते हैं, स्पेशली इट्स विद डॉग्स, बिकॉज कुत्तों को ज्यादातर हम चावल या फिर मीट रास्ते पे खिलाते हैं, तो लोकल्स को ऑफन ये कंप्लेन रहता है कि आप यहाँ गंदा कर रहे हो, कुत्तों को खिला रहे हो, कुत्ते यहाँ पे ही घूमेंगे, वो लोग यहीं पे अपना Abhishek, I think you need to repeat the question because there is some technical error from your side. Street on the roads. So, Abhishek. Okay. Often, yes. There is some error from your side, so I think you need to repeat the question. Can you hear me? Yeah, I can hear you now. Yeah. Okay. So, मेरा सवाल ये था कि आपको ऐसी कोई परेशानी कभी फेस करनी पड़ी है कि फीडिंग के टाइम पे लोकल्स ने आपको कहा है कि दे एक्सक्रीट हियर, दे अपना झुंड बना लेते हैं, हमें प्रॉब्लम होती है, दे बाथ थ्रू आउट द नाइट? तो जब आप फीड करते हैं किसी एक लोकेलिटी में, ऐसी कभी परेशानी फेस करनी पड़ी है? ये सब लेके तो किसी ने कभी कुछ नहीं बोला अभी तक, लेकिन हम लोगों ने ये फेस किया है कि हम लोग जब मतलब रास्ते में फीडिंग करवाते हैं तो कि अपना लोग के मतलब सॉरी आप लोग यहाँ पे मतलब खाना दे रहे हो, आप लोग यहाँ पे मतलब गंदा कर रहे हो, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से ये रखा था कि हम लोग जब खाना खिला रहे हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि कोई मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर वो ना हो। और हम लोग जब भी फीडिंग कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक एरिया में हम लोग ने फीडिंग करवाया, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली पेपर्स में देते हैं, तो वहाँ से पेपर हम लोग हटा लेते हैं ताकि फर्दर कोई कंप्लेन ना करे। Okay. And what about you, Rohan? What's the scene out there in Agra? So in Agra as well as in Ranchi and Tezpur, I would like to quote that the similar incident happened here too.
क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो काफी ऑफेंड हो जाते हैं, जो जानवरों को मे भी पसंद नहीं करते हो, तो उनका ये कहना होता है कि यार हमारे दुकान के आगे तो ऐसा मत करो, गंदगी ना फैलाओ. Yeah. People are very Correct. outspoken when it comes to their right, but people don't think about something which a voiceless animal can't say. So कोई लोग उनके बारे में नहीं सोचता. तो ये हाँ, ये काफी बार होता है कि लोग होते हैं, या यहाँ तक युवाएं होते हैं, यूथ भी काफी टाइम बोलता है कि हमारे एरिया में यार ऐसा मत करो, खाना फीडिंग मत खिलाओ, हमारा एरिया थोड़ा स्पॉइल हो जाएगा, एस्थेटिक अपील चली जाएगी हमारे शॉप के आगे का. तो ये होता है Right. काफी टाइम, ऐसा सिमिलर इंसिडेंट देखा गया है हमारे इस तरफ. तो आप उससे लाइक कैसे निपटते हैं? तो अब हमने यही कर दिया है. हाँ, तो हमने या तो ये कर दिया कि हम या तो सेल्फ क्लीनिंग हम कर लेते हैं उस एरिया का, अगर पॉसिबल होता है. बट कभी कभी क्या होता है, अगर आप सेल्फ क्लीनिंग करने जाए, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आपको 100, 150, 200 जानवर तक को फीड कराना पड़ता है. तो अगर आप साथ में पेपर भी कलेक्ट करते हैं, सो आई थिंक इट विल बी होल लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ टाइम, जहाँ टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये काफी. तो हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा ये नहीं हो पाए. एक एरिया हम ट्राई करते हैं, वहां पकड़ लिया 4-5 जो कुत्ते होते हैं, वहां एक साथ उनको कैटर कर दिया. हम बेसिकली ये करते हैं. Okay. And what about neutering? Like, do you also facilitate neutering of stray animals? I'm sorry, I didn't get you. Neutering of animals. Do you also facilitate that? No, as of now we are not into that, but very soon we are planning to. Okay. And Antara, what about the scene in Northeast? Does UCI do that here? Sorry. Neutering यहाँ पे होता है, facilitate होता है? Have you ever facilitated neutering नहीं, हम लोगों ने अभी तक ये नहीं किया. लेकिन हम लोगों को मतलब एक डॉक्टर ने बोला था दैट आप लोग यहाँ पे कर सकते हो. एंड ये ABC प्रोग्राम बोल के बोलते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम. तो हाँ, तो वो हम लोग शायद नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं. तो अभी तक ये प्लान है. Okay. So often जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है फंडिंग का. So do you also have that kind of a challenge? Is that a hurdle? Funds कोई hurdle होता है? Yes, I would like to say something on this. Yes, basically हमेशा एक ये issue रहा है regarding the funding. But like I always mentioned that people of same soul get connected together. तो बेसिकली ये होता है कि जो हमारे लोग होते हैं, या तो सेल्फ फंडिंग होती है. बेसिकली हमारे UCI में अगर कभी ढेकियाजुली में कुछ इशू हो जाता है, तो इट्स अंतरा, ब्रोजेन एंड फ्यू अदर टीम मेंबर जो खुद आते हैं और अपना पैसा लगाते हैं और अपना काम करते हैं. सेम तेजपुर में भी होता है. हमारे जो मेंबर्स हैं, लाइक राज साहनी हो गया, शिवा हो गया, अंकिता हो गई, एंड जो ये मतलब काफी एक्टिव है वॉइस वाले ग्रुप में. तो इनका ये होता है कि पहले ये लोग खुद अपना जो भी ये होता है, पैसा वैसा का बात होता है, ये लोग खुद देखते हैं. और कभी कभी ये होता है कि हमें कुछ लोग होते हैं जो लाइक बर्थडे पे अपने, या एनिवर्सरी पे, या किसी के डेथ एनिवर्सरी पे भी हमें फंडिंग देते हैं, डोनेशन देते हैं टू हेल्प आउट. और रिसेंटली कुछ ऐसे डोनर्स भी मिले हैं जो हमारे ट्रीटमेंट के लिए भी फंडिंग दे रहे हैं. तो ट्रीटमेंट इज समथिंग व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ इट्स अ वेरी हाई कॉस्टली थिंग. जो अगर आप वेटरनरी में जाओ तो ऑफ कोर्स इट टेक्स वेरी लो अमाउंट, बट सब कुछ वेटरनरी हॉस्पिटल में नहीं होता. तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें उनको पेट शॉप में भी ले जाना पड़ता है, जो ट्रीटमेंट का पड़ जाता है अराउंड 1500 मिनिमम पड़ जाता है. 1500 का कॉस्ट आता ही आता है. तो 1500 to 5000 इट वेराइज फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ट्रीटमेंट. तो कुछ डोनर्स ऐसे भी हैं जो हमें डोनेट करते हैं रिगार्डिंग द नॉर्मल ट्रीटमेंट. और कभी कभी क्या होता है, अगर कुछ ट्रीटमेंट होता है जिसका एक्सपेंस काफी हाई होता है, अराउंड 10,000 12,000, तो उसके लिए हम क्राउड फंडिंग कर लेते हैं कभी कभी. तो लोग काफी हेल्पफुल होते हैं, दे इवन डोनेट इट. तो क्राउड फंडिंग का रिस्पांस अच्छा रहता है यूजुअली? हाँ, क्राउड फंडिंग का रिस्पांस अच्छा रहता है, स्पेशली जब ट्रीटमेंट की रिगार्डिंग हो, तो एक अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें पब्लिक से. ओके. सो एक क्वेश्चन है नंदिनी से, जो हमारी मेंबर हैं. तो
उनका कहना है कि स्ट्रीट डॉग्स को ऑफन किडनैप किया जाता है, स्ट्रीट एनिमल्स को फॉर मीट, इलीगल ट्रेड, ठीक है। सो इसमें व्हाट इज द स्टेटस देयर? वेल एज ऑफ नाउ ऐसा तो यहाँ पे सीन नहीं देखा गया है कि किडनैपिंग होती हो स्ट्रे एनिमल्स की। बट हाँ, स्ट्रे एनिमल्स से किडनैपिंग तो नहीं होती, बट जो हम कॉलर्स लगाते हैं स्ट्रे एनिमल्स को, वो काफी गायब किया जाता है, चोरी किया जाता है। मे बी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पेट्स के लिए ले जाते हैं, या कुछ लोग, कभी ऐसा भी होता है जो डॉग्स अपने फाइट में बाइट कर देता है उस कॉलर को। तो ये काफी टाइम होता है कॉलर के साथ, तो ये काफी टाइम होता है अराउंड लाइक अभी तक हमने 200 से 250 कॉलर लगवाए हैं स्ट्रे एनिमल्स को, और 100 गायों काउस को हमने कॉलर्स लगवाए हैं। तो ये डॉग्स में काफी देखा गया है, काउस का तो काफी टाइम रहता है, तो डॉग्स का काफी टाइम देखा गया है कि दूसरे दिन ही गायब हो जाता है कॉलर। तो किडनैपिंग तो नहीं बोलना चाहूंगा, बट जी, एक्चुअली लास्ट वीक हमारे गेस्ट ने भी यही कहा था कि वो लोग भी ऐसे कॉलर्स लगवाते हैं, रिफ्लेक्टिव कॉलर्स लगवाते हैं, लेकिन वो गायब हो जाता है आफ्टर वीक, इट कांट बी सीन देयर। तो एंड इनफैक्ट ही सेड कि उन्होंने ऐसा देखा था कि एक आदमी अपने पेट के ऊपर वो पेट को लगा के वो वॉक करवा रहा था। ऑब्वियसली चोरी हुई है। तो हाउ डू यू डील विद दैट? क्या आप लोग लोगो लगाते हैं अपने कॉलर्स पे या वैसा कुछ? सो बेसिकली क्या होता है, ये लोगों के लिए इट्स ए मास ऑर्डरिंग थिंग, जो आपको करीब 500 या 1000 कॉलर्स जब ऑर्डर करते तब करना पड़ता है। तो अभी तो इतना फंड आता नहीं हमारे पास, बट जितना भी आता है वी ट्राई कि अभी हमारा एक ये रहा है प्रॉमिस अपने आप से कि कभी भी नेक्स्ट टाइम से भी कुछ करना हो तो विल डू दैट। और देखिए, ऐसा बात नहीं है कि अगर आप लोगो लगा देंगे या ब्रांडिंग कर देंगे अपने उस रिफ्लेक्टेड कॉलर का तो वो चीज़ रुकना बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा बंद। उसके लिए हमें पीपल को एजुकेट करना पड़ेगा। अगर एजुकेट तो छोड़िए, हमें लोगों की भी हेल्प करनी पड़ेगी। आई थिंक कि अगर आपको चाहिए यू कैन कॉन्टेक्ट अस, विल डू द नीडफुल। अगर आपको दो चाहिए, आपके 2 पेट्स हैं, तो विल प्रोक्योर इट ऑन बिहाफ ऑफ यू और विल डोनेट इट टू यू। आपको करना, आपको लगाना है, आप लगाएं, वैसा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट स्ट्रे का तो ना चुराएं। ये हो सकता है। और अभी हमने इसी के साथ हमने 2 इनिशिएटिव और इनिशिएट किया था। एक आपका हो गया शेल्टर होम। शेल्टर होम बेसिकली वी मेड समथिंग आउट ऑफ टीन, जो अपना वेस्ट हो जाता है, जो मस्टर्ड ऑयल का टीन आता है 10 लीटर या 20 लीटर का जो भी है, तो उसको हमने कट किया, उसको हमने शेप दिया अच्छा, उसको हमने पेंट किया, और उसके लिए हमने बर्ड्स के लिए हमने शेल्टर होम बनाया। तो ये करीब 2 हफ्ते पहले हमने 2 या 3 हफ्ते पहले हमने लगाया था अराउंड तेजपुर के करीब 100 स्पॉट्स पे। और 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक तो कोई ऐसा रेस्पॉन्स नहीं मिला, बट अभी पिछले हफ्ते देखा गया है कि काफी अराउंड 50 में से करीब 10 से 12 शेल्टर होम में बर्ड्स आ रहे हैं। वहाँ हमने पल्सेस और वाटर रखा था, ताकि होता है ना गर्मी में, डॉग्स के लिए तो हम कर रहे हैं, किटन्स के लिए कर रहे हैं, काउस के लिए भी कर रहे हैं, बट बर्ड्स का कोई नहीं कर पा रहा। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया आउट ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, जो एक वेस्ट मटेरियल से हमने उसको रिसाइकिल किया। हमारे सारे मेंबर्स ने ये बनाया। हमारे मेंबर्स लाइक प्रतीक हो गए, सोनू, सिद्धार्थ, दीपक, इन राज साहनी, फिर शिवा, अंकिता दी, इन सबका एक इनिशिएटिव था टू मेक समथिंग आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो एक नेचर के लिए भी सही बात रहे। तो हमने समथिंग कुछ वेस्ट मटेरियल से बनाया, और अभी बहुत अच्छा, हमें खुद एक मतलब गर्व महसूस होता है जब हम देखते हैं कि हमारे बनाए हुए चीज में, जो एक मेन मेड चीज है, उसमें एक नेचर का हैबिटेट हो रहा है, एक 10-12 बर्ड्स आ रही हैं। तो उसको देख के हमने और एक इनिशिएटिव इनिशिएट किया। एक वाटर पॉट्स हमने इंस्टॉल किया है करीब 80 जगह पे तेजपुर के, वो भी चिड़िया को पानी पिलाने के लिए। तो वहाँ भी अब चिड़िया को देखा जा रहा है, बर्ड्स को देखा जा रहा है। और ये हमने पब्लिक के लिए भी ओपन किया है, एक हम पोस्टर रिलीज कर रहे हैं उसके लिए। अगर आपको अपने घर के आसपास लगाना है, आपके घर पे भी लगाना है, यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और वी विल बी देयर विद द पॉट इन द शेल्टर होम। वो हम आपको देंगे। अगर आपको घर पे इंस्टॉल करना, आप घर पे करिए, अगर आपको लोकेलिटी में करना, आप लोकेलिटी में करिए। ओके ओके, सो अंतर द सेम क्वेश्चन टू यू कि क्या आपने ऐसा कोई केस देखा है कि पेट डॉग्स को या फिर स्ट्रीट डॉग्स को किडनैप किया जा रहा है? ऐसा कोई केस देखा है? या फिर अगर मतलब
अगर ऐसा कोई इफ यू आर इवन अवेयर ऑफ ऐसा कोई केस आपके जानकार में भी हो तो इसके लिए लाइक पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन या फिर एनजीओ क्या स्टेप्स ले रही हैं? अभी तक तो यहाँ पे मैंने ऐसा केस नहीं देखा। अगर मतलब ऐसा कहीं पे हो रहा है तो मतलब हम लोग को पब्लिक को अवेयर करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, कि वो लोग थोड़ा ध्यान दें इस चीज़ों में, क्योंकि वो लोग अगर देखें मतलब इन्फॉर्म करेंगे तभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव का हेल्प ले पाएंगे। एंड पुलिस को भी इन सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब पार्ट प्ले करना चाहिए, वैसे ही ठीक हुआ है। अवेयरनेस पे एक लाइक बात पूछनी थी मुझे एंड द क्वेश्चन विल बी टू बोथ ऑफ यू, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू inform our viewers, if you have any questions, please put it out on our Facebook page or in the Zoom chat box, and I'm sure our guests will be happy to answer your queries. So Rohan and Antara, like मेरा सवाल आपसे ये था कि awareness बहुत सारे NGOs हैं जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, so including yours. So awareness drives are a crucial part of every NGO, every welfare organization. So ये awareness drives, have they made any difference? इनसे कोई फर्क पड़ा है? अगर पड़ा है तो किस तरह से पड़ा है? Is it measurable? और अगर नहीं पड़ा है तो वो इसका क्या कारण हो सकता है? Like also awareness में also हमें ये भी देखा जाता है कि we need every welfare organization or every animal activist has said, like we have spoken to, everyone says कि we need stricter animal laws, animal welfare laws, but अभी तक वो देखने को रहा है. So can you tell us कि इसका ये state, what is the state of animal welfare awareness in India or in the Northeast in particular? I think in recent past 2 to 3 couple of years कि एक डिफरेंस देखा गया है अवेयरनेस प्रोग्राम के ड्राइव से, कि earlier what used to happen is people were just just used to pamper the pets. ऐसा होता था कि जानवर से ज़्यादा लगाव नहीं होता था, बस एक होता था कि डॉग है तो अगर हम डॉग से लगाव करते हैं तो वी कॉल आवरसेल्फ एज एन एनिमल लवर. तो अब ये ऐसा आई थिंक नहीं देखा जा रहा है. द बाउंड्री इज गेटिंग बिगर दिस डेज. और ऐसा नहीं है कि लोग बस एक सेट ऑफ जानवरों का देखभाल कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं करना. पहले बस होता था कि कुत्तों के लिए हम करते थे, डॉग्स के लिए करते थे, बट अब वैसा नहीं रहा है. अब पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड, लोग आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस को भी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो एक बहुत अच्छी चीज है. पहले होता था हाई एंड ब्रीड्स कोई अडॉप्ट किया जाता था, तो ये गलत तो मैं नहीं कहूंगा, वो भी सही है, बट अभी कुछ ज्यादा अच्छा है स्ट्रेस को, क्योंकि हमारी जरूरत है लव केयर की. तो आई थिंक अगर उसको हम अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको एक तो हम घर दे रहे हैं, एक अच्छा रहने खाने का जगह दे रहे हैं. तो आई थिंक एक अवेयरनेस प्रोग्राम एक बहुत अच्छी चीज है जो की जा रही है दूसरे वेरियस इनिशिएटिव्स थ्रू आपका जितने भी एनजीओस हैं. तो एक वो अच्छा काम हो रहा है. मैं पर्सनली ऑन पर्सनल लेवल और एक यूसीआई फाउंडेशन के लेवल पे भी एक चेंज देखा जा रहा है, और पीपल भी काफी एजुकेट हो रहे हैं इस मामले में. और जहाँ तक और एक चीज मैं बोलना चाहूँगा, अवेयरनेस रिगार्डिंग लॉस भी बहुत जरूरी है. However, as an UCI Foundation, we are studying much more about it, ताकि हम और लोगों तक रीच बढ़ा पाएं इस लॉज का, एनिमल राइट्स के बारे में. सो हम इस पे अभी स्टडी कर रहे हैं, और वेरी सून विल बी स्टार्टिंग समथिंग ऑफ आवर ओन, जहाँ हम लोगों को एजुकेट कर पाएं, अवेयर कर पाएं अबाउट एनिमल राइट्स, एनिमल लॉस एंड एनिमल वेलफेयर. Okay. So and ये नॉर्थ ईस्ट में what is the scene कि एनुअल वेलफेयर अवेयरनेस का क्या सीन है नॉर्थ ईस्ट में? Like these drives, how do they motivate or affect people? Antara, would you like to take that? Hello. Yeah. जी अंतरा, मेरा सवाल ये था कि नॉर्थ ईस्ट में एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस को किस तरह से लिया जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? आपने जितने भी किए हो, ढेकिया जिले में जितने भी किए हो एनिमल वेलफेयर अवेयरनेस ड्राइव्स, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है लोगों पर, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? स्टार्टिंग में हम लोग जब मतलब फीडिंग के लिए भी जाते हैं, ये एक चेंज मैंने देखा है. मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ. जब स्टार्टिंग में हम लोग फीडिंग में जाते थे
तो पीपल यूज्ड टू से कि आप लोग मतलब कितने दिन खिलाओगे, कि मतलब कितना काम करोगे आप लोग, ऐसे टाइप से हम लोग को बोलते थे। लेकिन जो लोग पहले बोलते थे कि इन लोगों को खिला के भी क्या होगा, वैसा भी बोला है बहुतों ने। तो अभी वो लोग खुद से आके कुछ डोनेट करना चाहते हैं हम लोगों को। एंड ओके पहले जो रोहन भैया ने बोला, पहले पहले लोग मतलब ब्रीड डॉग्स को ज़्यादा प्रेफ़र करते थे। लेकिन हम लोगों ने अभी तक ऑलमोस्ट 150 डॉग्स एंड कैट्स को अडॉप्ट करवाया है, स्ट्रे डॉग्स को एंड कैट्स को। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। okay so viewers if you have any questions please do feel free to interject and ask away your queries. Also, Rohan, where do you see your organization, UCI Foundation, in the field of animal welfare in the next 2 years? Okay. How do you So- feel that it can make like what changes do you feel you can make? What differences can you make? What are you working Right. on? What are your plans? So as of now, our plan is very simple to educate people regarding the animal welfare awareness and about the laws. क्योंकि हर आए दिन हम ये चीज देखते हैं, जो एक एनिमल ब्रूटैलिटी का केस रिपोर्ट होता है। अभी रिसेंटली एक भोपाल का हुआ था, और लास्ट वीक असम से भी, नौगांव राज्य से भी एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था ऑन इंस्टाग्राम। तो हमने उसके वो एक बच्चा था, माइनर किड था, तो हमने उसके पेरेंट्स से बात किया। सो वी मेड हिम अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एनिमल, द रोल ऑफ स्ट्रेस। तो वो बंदा, ही वाज वेरी शेमफुल अबाउट हिज एक्ट, and even his parents were quite shameful about the act of their children, of the child. तो ये आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है लोगों को एजुकेट करना। तो आई थिंक देखिए, और एक चीज मैं बहुत इंडिविजुअल लेवल पे मानता हूँ कि हमारे एक आदमी से या एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ चाहे तो नहीं कुछ हो सकता चेंज, ऑफ कोर्स हो सकता, बट अगर हमें उसको बड़ा पिक्चर में इम्पैक्ट करवाना है तो आई थिंक सारे एनजीओ को, सारे ऑर्गेनाइजेशन को साथ आना पड़ेगा। ऐसी plenty of organizations doing very good work in their field. Like in Dibrugarh, I see Vineet Bhai and their team working very well. Animal welfare people, jo hai. In Pan India, I can see it's PRCF led by Dr. Prerna Gogoi and Nandini ma'am. Right. So right. I think these people are trying to bring change in the society. But ये क्या होता है ना, हम एक अलग अलग राज्य में या एक अलग अलग प्रांत में लिमिटेड हो जाते हैं। So I think we should make, kind of, it should be an initiative of making a WhatsApp group या some bigger group, जहां हम सारे लोग, हर राज्य के लोग या हर एटलीस्ट असम के हर एक डिस्ट्रिक्ट के लोग, या सिटीज के लोग एक साथ जुड़ पाए और वहाँ सारे इश्यूज को रिजॉल्व कर पाए, चाहे वो एनिमल ब्रूटैलिटी को हो या एडॉप्शन को ही क्यों ना हो। आई थिंक इट विल चैनलाइज। रोहन, आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कही कि पेरेंट्स जो है उस बच्चे का, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो उस बच्चे के पेरेंट्स थे वो लोग काफी रिमोर्सफुल थे एंड वो लोग भी काफी शर्मिंदा थे जो भी ये जो एनिमल ब्रूटैलिटी का इंसिडेंट हुआ था। एंड इनफैक्ट आई थिंक दिस हैज बीन द केस like since a long time. I don't know, like even in our literature we find Arthur Conan Doyle का जो Sherlock Holmes Adventure of the Copper Beeches, उसमें भी रहा था कि एक बच्चा है जो who learns from his parents and brutalizes animals, right? Birds and all kinds of animals, he brutalizes them, tortures them. So this has been the case from since time immemorial कि बच्चे माँ बाप से सीखते हैं बहुत कुछ। कभी कभी उनका माँ बाप के स्वभाव का एक असर पड़ जाता है उनपे। तो क्योंकि आपका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कहा है माँ बाप के साथ को डील करना पड़ा है, तो क्या आप पेरेंट्स के साथ ऐसा कोई अवेयरनेस प्रोग्राम आप ऐसा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में सोचते हैं या फिर कर रहे हैं ऑलरेडी? ओके, सो बेसिकली हम वैसा प्लान तो नहीं है, क्योंकि वी डोंट हैव सच high education on animal rights and animal welfare, but we are studying. And first and secondly, I would like to thank Chandni, one of our member, who spoke and educated the children and the parents. जो ये इंसिडेंट हुआ था उसको काफी अच्छे से एजुकेट की मैंने, वो
नोट्स वॉइस नोट सुना, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा था वे शी डेल्ट विद द अगर हमारी जगह कोई और होता तो होपफुली या आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो बंदा गाली गलौज करता उसके पेरेंट्स से या उस बच्चे से, बट जिस तरीके से चांदनी ने हैंडल किया उस सिनेरियो को, आई थिंक इट वाज वेरी गुड। और रही बात एजुकेशन की, ऑफ पेरेंट्स को एजुकेट करने की या इवन चिल्ड्रन या सोसाइटी को एजुकेट करने की, सो आई स्पोक टू डॉक्टर प्रेरणा गोगोई, सो शी हैज प्रॉमिस्ड दैट इन कमिंग डेज जब ये पेंडेमिक थोड़ा सा आउट ऑफ जो कहते हैं कंट्रोल में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, शी हैज प्रॉमिस्ड दैट शी विल बी सेंडिंग फ्यू टीम मेंबर्स जो हमारे सोसाइटी को एजुकेट कर पाए। तो हम एक बेसिकली एक ड्राइव चलाएंगे या ऐसा करेंगे कि हमारे मेंबर्स फिजिकली प्रेजेंट हो और हम कुछ सीखें और आगे और लोगों तक पहुंचा पाइए मैसेज। और आपको क्या लगता है कि माँ बाप का रोल कैसा होना चाहिए एक बच्चे की एजुकेशन में इन द विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल वेलफेयर? Well, I think the parents plays a very big role in upbringing of a children, क्योंकि जो भी चिल्ड्रन रेज किया जाता है वो अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, अपने पेरेंट्स से स्वभाव लेता है या बात करने का तहजीब लेता है, अपने पेरेंट्स से लेता है जो भी लेता है। तो आई थिंक पेरेंट्स को एक नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कास्ट इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, आई थिंक इट्स समथिंग रिलेटेड टू एनिमल वेलफेयर भी ये हाई टाइम हो गया है कि हम अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट करें। और रही बात हाँ, तो ये एक आई थिंक पेरेंट्स प्लेस अ वेरी बिगर इम्पैक्ट एंड रोल इन children's upbringing, so I think it's very important for us to educate the parents too. तो I'm hopeful कि हम डॉक्टर प्रेरणा गोगोई से कुछ सीखें और आगे लोगों तक पहुंचाएं उनका मैसेज। ओके, सो नंदिनी का एक सवाल है कि आर पीपल अवेयर ऑफ feline vaccines and do they come forward to vaccinate their cats? So I think आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसमें? हाँ, तो इसके लिए बेसिकली आई थिंक पीपल आर नॉट दैट एजुकेटेड, तो इसलिए हम क्या करते हैं जब भी हम साल में हमारा ट्राई रहता है कि 2 से 3 वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि हम लोगों तक ये पोस्टर रिलीज करते हैं और ये अच्छा जोरों शोरों से 1 महीने से हम ये कैंपेन चलाते हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए और लोग एजुकेट हो पाए और वो दे टर्न अप ऑन द डे ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। तो आई थिंक ये लोग काफी पॉजिटिवली ले रहे हैं इसको वैक्सीनेशन ड्राइव को, एंड आई थिंक वी नीड टू एजुकेट द पीपल जो एजुकेट नहीं होते, वो हमारा काम होता है एज एनिमल वेलफेयर या एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव या एनजीओ कि हम लोगों तक ये बात पहुंचाए और एजुकेट कर पाए उनको वैक्सीनेशन ड्राइव के इसमें। Have time for just maybe 2 more questions if someone can read. Abhishek, can you hear me? Yes. Yeah. Priyanshu, go ahead. Yeah, Melinda got some questions. Yes, Milind. Yeah, you can unmute yourself, Melinda. Yeah. So thank you, Antara. More অসমীয়াতে কম, তুমি অসমীয়া বুজি পোৱা? হয়, তো ভাল লাগিছে যে ঢেকিয়াজুলিত ভাল কাম কৰি আছা, আৰু ঢেকিয়াজুলি as well as তেজপুৰ। তো মোৰ এইটো কোৱেশ্চন আছে কি তোমালোকে ষ্টাৰ্ট কেতিয়া কৰিছিলা? আমি জানুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো ইয়াত ঢেকিয়াজুলিত কামটো। আচ্ছা ঠিক, এই বছৰৰ জানুৱাৰীৰ পৰা। আৰু তেজপুৰত কেতিয়া পৰা কৰি আছা? Sir, Tezpur, it has been 1.5 years, sir. 1.5 years. Okay. So, so তোমালোকে তুমি যে মেম্বাৰশ্বিপক নাম্বাৰটো ভালদৰে নুশুনিলো, মেবি বুঢ়া হৈছে, did you say 13 or 15 or কিমান মেম্বাৰশ্বিপ? ঢেকিয়াজুলিত বৰ্তমানে 13 জন মেম্বাৰ আছে। 13 জন। তো তোমালোকে কিবা মেম্বাৰশ্বিপ এমাউন্ট লোৱা, মান্থলি মেম্বাৰশ্বিপ কেনেকে কৰা? আমাৰ মেম্বাৰশ্বিপ এটা ফিজ থাকে, বহুত মিনিমাম ফিজ হয় এইটো। তো আমি মেম্বাৰ্ছৰ পৰা সেইটো কালেক্ট কৰোঁ আৰু সেইবোৰ এটা ফাণ্ডত জমা হৈ থাকে, যেতিয়া আমাৰ এইটো দৰকাৰ পৰে আমি যাতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আচ্ছা।
monthly fee. আৰু মানে দিনক দিনে বাঢ়িছে নে? quite often কেনেকুৱা হয় কি যেতিয়া ৰেস্কিউ হ'ব হয় ন তেতিয়া চবৰে কাম হৈ যায়। আজি অমুকৰ কাম আছে তমুকৰ কাম নহয়, ফাইনেলি গৈ পেলাই মেইন কাম 2টা বা 3টা মানুহে কৰে। হয়। তোমালোকৰ সেইটো হয় নেকি? কেতিয়াবা হয় যে সবে এভেইলেবল থাকিব নোৱাৰে বা সবে আহিব নোৱাৰে, আৰু তেতিয়া 2-3জন যাব লাগে। কিন্তু মেম্বাৰ্ছ আমাৰ ইয়াতে যিমান মেম্বাৰ্ছ আছে সিহঁতৰ ৰেছপন্সবোৰ ভাল, মেক্সিমামে এফৰ্ট দি কাম কৰে, পাৰ্টিচিপেট কৰে কামবোৰত। আৰু ঢেকিয়াজুলিটো বেছি ডাঙৰ জাগা নহয় ন, সৰুৱে নহয়, জাগা। হয়। তো তোমালোকে কাউন্ট কৰা নে, কমিউনিটি ডগ কাউন্ট কৰা নে? হয়। কেইটা কুকুৰ আছে, কোনটো এৰিয়াত কেইটা কুকুৰ আছে? হয়, আমি কাউন্ট কৰো, প্লাছ আমি মেম্বাৰ্ছবোৰে মানে মেক্সিমাম ডগছবোৰৰ নামো ৰাখো। ইহঁতে আমাৰ লগত মানে থাকি ইহঁতক সেইটো নামেৰে মাতো ইহঁতে বহুত ডগছবোৰে এতিয়া ইহঁতৰ পাৰ্টিকুলাৰ নামে হৈ গৈছে, ইহঁতক নাম দি মাতিলে ইহঁতে আহি যায় আমাৰ ওচৰত। তো ওভাৰঅল তোমালোকে চাগে কাউন্ট এটা আছে ঢেকিয়াজুলিত কিমান কুকুৰ আছে বা তেজপুৰত? হাউ মাচ ডু ইউ সে ষ্ট্ৰে ডগ কিমান আছে? ঢেকিয়াজুলি যদি আমি হাইৱে ওপৰত চাব যাওঁ, বেচিকেলি আমি মানে যিমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰোঁ, তো তাতে মোৰ দেন 50 আছে। আৰু আপুনি যদি পুৰা ঢেকিয়াজুলি কাউণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লেতো 150 মান হ'ব, 150ৰো বেছি হ'ব। আচ্ছা, কাৰণ কি আমি জাগাটো সৰু হ'লেও আমি মানে টাইমটো কভাৰ কৰা বা ইমানখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰা পচিবল নহয়। আৰু তেজপুৰ, ৰোহন, তেজপুৰত কিমান মান আছে বাৰু ষ্ট্ৰে ডগ? স্যাৰ তেজপুৰত আপোনাৰ 150 প্লাছ ফিগাৰটো হয়। আচ্ছা, 150. So it's not so bad like Guwahati. হয় নে নহয়? No sir, not that great sir. আচ্ছা আচ্ছা। আৰু তোমালোকে যে কলাৰ বেণ্ডবোৰ যে ৰিফ্লেক্টিভ কলাৰ লোৱা, তো তোমালোকৰতো লগোটো ভাল, ধুনীয়াকৈ লগোটো দি দিব পাৰে ন? হয় sir. কৰিলে এটলিষ্ট like I mentioned sir, but the thing is we need to order in a mass number. Like আমি order কৰো around 100 বা 200. So যদি আমাৰ logo বনাব লাগে during the time of production, so we need to order at least 1000. So তোমালোকে এটা ষ্টেম্প লৈ অৰ্ডাৰ কৰি লোৱা না, ষ্টেম্প লৈ পেলাই তোমাৰ ইমান ভলণ্টিয়াৰ আছে, ধুমধাম ষ্টেম্প লগোৱা বা যি কৰিব লাগে। Right sir. Sir, but the thing is we don't charge much from volunteers. Like in Tezpur we don't charge any amount. In Dhekajuli, since it's a small place, so we charge around 100 rupee the joining fees, and monthly also we send some amount to Dhekajuli for continuing such initiatives like feeding and everything. So we don't charge something. It's basically crowd funded things. So Guwahati is a very difficult, no? This is a huge place. But Dhekiyajuli or Tezpur is a small area. তোমালোকে already কৈছা যে সমাজেও support দি আছে। লাহে লাহে hopefully the police department also going to help. Medical ভাল কৰি আছে because it's small, no? So maybe লাহে লাহে municipality টো কেনেকুৱা ক'ব নোৱাৰো তোমালোকৰ ঢেকিয়াজুলি। municipality টো মামা ককা খুৰা কোনোবা এজন থাকিলে ভাল আছিলে। No, because slowly then you can also talk about like animal symmetry, যোনটো ইয়াত নাই। So গুৱাহাটীত এতিয়া আমি কৈ থাকিবলগীয়া হৈছে, but তোমালোকে at least you can start from the very beginning, slowly যদি আমি তোমালোকে awareness program কৰিছাই যেতিয়া, maybe collaborate with the city and maybe the city will have an animal welfare board or something. যদি নাই কৰিব লাগে বুলিও লাহে লাহে কৈ থাকিলে 2 বছৰ মানৰ পিছত হ'ব চাগে। আৰু সেইটো লগে লগে তোমালোকে যদি also কোৱা যে তোমালোকক এটা স্পেচিফিকেলি তেজপুৰত যাতে তোমালোকৰ 24 hours hotline লাগে বা ambulance এটা লাগিব বা those things that Guwahati নাই. Nandini has also mentioned that ki lift নাই ইয়াতে ডাঙৰ জন্তুবোৰ উঠাবৰ কাৰণে, pregnant cow or elephant or what not. So that's what we hope that we will ask over here. So we can share this note so that you can also start asking. I know that Rohan is a big shot now, well-known person, uncivilized Indian. We should make that connection and request those kind of stuff to the city, right? And we can also share that what we are planning to ask, so that you can be
with us, because maybe তোমালোকে আমাক sign কৰি দিবা, আমি তোমালোকক sign কৰিম. So maybe we will create a petition or something like that and take mass signature. Similarly, you all guys also started for Tezpur and Dhekiyajuli. We can all learn from each other. Yes, sir. I think it's a very nice idea. Or sir, regarding the shelter home, we are planning to talk this week with our local administration. We are very hopeful that they will provide some kind of help for opening some kind of shelter home. क्योंकि काफी टाइम क्या होता है, rescue तो हम कर आते हैं, but we don't have place to keep the stray animals. क्योंकि सब टाइम possible नहीं होता कि हमारे volunteers के पास animals रखें. So we are planning to reach out to the administration, and I think before you have that conversation, because already Nandini is running the shelter over here, it would be good to have a conversation to see what are points to cover, because she's quite experienced in running that, and she's also trying to get help from Guwahati government or municipality. So maybe having a conversation, get all the points, if needed, get her also there, so that together it's more stronger. That's my suggestion. Yes, sir, it's a beautiful suggestion. I would like to take your help, in connecting with Nandini ma'am. I spoke to Dr. Prerna Gogoi last week, so she gave me some inputs. So I'm hopeful that this week हम जाएंगे. Or again, we would like to take help from you and Nandini ma'am too, sir. Sure, definitely, anything for you guys. And also, we'd love to know, as we are trying to invite all the people who are doing various work for animal welfare in Assam or eventually Northeast, tumalukor osor kun ase, there may be something else, whatever is next area next to Tezpur, aru kunba ase niki, so that we compile all these NGOs. Sometimes it may be NGOs and sometimes it may be a person. For example, I have a renter, from Tezpur. We are having a conversation, and today morning itself, because the hilltop I live has a snake. So I said, yeah, I know this snake. He's a permanent resident of our compound. So, and we do not disturb him, and he do not disturb us. But he said, oh, if it's a cobra, then there's no other option but to kill. I said, no, why to kill? So he was giving some example in Tezpur, blah blah blah, So maybe he did not know that there's an expert or there's a snake catcher in Tezpur. So we have to compile those information. So if you could share any of those, somebody whether it's a Tezpur, Digbo, somebody, Dhekiyajuli, we do not know, but there may be somebody. If you compile and we share this information with each other, that will be great. Right, sir. Definitely, sir. I'll share the details with you. Okay. All right. Thank you, Rohan, Antara. Thank you, Abhishek. Thank you, Melinda. Thank you, Abhishek. Okay, we are almost out of time. I think we have one last question from Pratik. Pratik, if you could just unmute your mic. हेलो जी प्रतीक बताइए. प्रतीक पूछिए, अपना सवाल पूछिए. प्रतीक आपका माइक अभी भी म्यूट पे है. Pratik, can you hear me? प्रतीक आपका माइक अभी भी म्यूट पे है. I think it's facing some issues. Okay, okay, I guess then we'll just wrap up the session. Thank you, Rohan, and thank you, Antara, for joining us. The session has been really enlightening, and we hope that Anajuri could work with you guys in future and help build a better world for the animals. Thank you so much. Thank you, Abhishek. And for our viewers, thank you, viewers, for joining us. And don't forget to join us tomorrow in our session at 10 a.m. where we'll have Ratnadeep Bhattacharjee, the co-founder of Tech Solutions Company, Guwahati-based Tech Solutions Company. And he will definitely be able to tell us about his journey during the lockdown and the difficulties he has faced and how he overcame them. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Hope to see you tomorrow at 10 a.m. Goodbye. Good night.